rather interesting one. This is the, just a moment. The Union Executive. Are you all clear? Okay. Okay. And am I audible to all of you even now? So let us start now. Okay, let's start. Okay. Chaliye. What is the structure of the Union Executive? Oh, it consists of the President. Oh, yes, the Vice President also. Even though he may be the chairperson of the Rajya Sabha, he is considered to be a part of the executive. Because Vice President is supposed to discharge the functions of President when the President's office falls vacant because of, let us say, resignation, impeachment, death, etc., etc. Right? So, Prime Minister and the Council of Ministers. Okay? लेकिन थोड़ा और आगे देखो. The Union Executive will consist of the President, the Vice President, Council of Ministers, and also the Attorney General of India. ठीक है? समझ आ गया? ये चारों Union Executive के पार्ट है. अब यहाँ पे एक छोटा सा डिस्टिंक्शन है. मैं आपको दिखाता हूँ. देखो, यहाँ पे लिखा है पॉलिटिकल एग्जेक्टिव वर्सेस परमानेंट एग्जेक्टिव. अब सिर्फ सुनो मेरी बात. देखो बेटा, पॉलिटिकल एग्जेक्टिव तो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एट द सेंट्रल लेवल, and at the state level the governor, the chief minister and the council of ministers at the state level. ये वो जो ब्रॉड पॉलिसीज वगैरह बनाते हैं, ये पॉलिटिकल जो मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं, इसको पॉलिटिकल, इंक्लूडिंग द प्रेसिडेंट, ये पॉलिटिकल एग्जेक्टिव है. उसके नीचे होती पूरी ब्यूरोक्रेसी जिसका आप पार्ट बनोगे. ठीक है? आप तो परमानेंट हो टिल द टाइम ऑफ योर रिटायरमेंट. सरकारें बदलती रहती हैं, प्रधानमंत्री, चीफ मिनिस्टर बदलते रहते हैं, गवर्नर, प्रेसिडेंट बदलते रहते हैं, आप परमानेंट रहते हो. Your principal job is to execute the policies and execute the laws. Broad policy making and also advise at when you reach the higher levels in bureaucracy at the level of secretary, additional secretary in central and state government, then you also have to advise on what is the appropriate policy. आपको ministers को advise भी करना होता है. ठीक है? और neutrally advise करना होता है, keeping in mind the constitutional values, keeping in mind the interests of the people. ठीक है? अब वो कितना होता है वो तो एक अलग बात है. रोल ऑफ सिविल सर्विस इन डेमोक्रेसी में एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, स्पेशली फॉर योर मेंस. उसमें बताऊंगा कि सिविल सर्विस में प्रॉब्लम्स क्या क्या आ गई. राइट? बट पॉलिटिकल एग्जेक्टिव इज एट द टॉप. The politically elected prime minister, president, and then the council of ministers, they are non-permanent in the sense that prime ministers keep on changing, the council of ministers, ministers keep on changing, presidents and governors, chief ministers keep on changing, but you remain permanent. And your principle permanent till the age of retirement, obviously, सारी उम्र के लिए नहीं, till the age of retirement. And while you are at the state level or at the central level, you will see the rule of God knows how many prime ministers and chief ministers, right? So, and so many different political parties will come to power. And you'll have to learn to work under all kinds of political parties of all ideological hues and all ideological visions, etc., etc. वो आपको सीखना पड़ेगा. And especially when you're in the top two most politicized services, IAS and the IPS, the ones which are the most politicized services, वहां पे तो आपको जरूर सीखना पड़ेगा. तो आप वो परमानेंट, आपका जॉब है बेसिकली पॉलिसीज को एक्सिक्यूट करना. ठीक है? तो ये डिस्टिंक्शन है बेटा बिटवीन योर परमानेंट एंड योर पॉलिटिकल एग्जेक्टिव. ठीक है? पॉलिटिकल एग्जेक्टिव चेंज होता रहता है, परमानेंट एग्जेक्टिव में आप लोग जाओगे. Or naturally, you will see that the rule of different political parties, prime ministers come and go, chief ministers come and go, and so on and so forth. Right. चलिए जी. Now let us start with firstly the topic of the president. ठीक है? BEAR Acts, Article 52. नोट्स में सब कुछ है, जो नहीं होगा मैं आपको लिखवाऊंगा. इनफैक्ट शुरू में एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको लिखवाऊंगा. ठीक है? आइए जी. आर्टिकल 52. अच्छा, प्री में ना कई बार मेंस द फॉलोइंग में क्वेश्चन आ जाता है, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल्स व्हिच क्रिएट इंपॉर्टेंट पोजीशंस इन इंडिया. ठीक है? जैसे आर्टिकल 52 क्रिएट्स द पोजीशन ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. आर्टिकल 153 वो गवर्नर की पोजीशन क्रिएट करता है. आर्टिकल 148 सीएजी की पोजीशन क्रिएट करता है. आर्टिकल 76 अटॉर्नी जनरल की पोजीशन क्रिएट करता है. ये जो टिपिकल कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशंस क्रिएट करने वाले आर्टिकल्स होते हैं ना, इनको याद रखना जरूरी होता है. ठीक है? मैच द फॉलोइंग वगैरह के अंदर क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है. करेक्ट? सो व्हाट डज आर्टिकल 52 से? लेट अस कम टू द बेयर एक्ट. It says what? There shall be a president of India, which means there will always be a president of India. This position can never be vacant. Okay, if the president is to, tragically die or resign or is impeached, okay, vacancy comes immediately. So whenever there is such a vacancy, immediately the vice president discharges the functions of the president. So the position of president can never fall vacant. So president nahi hai, so vice president will discharge the functions of the president. And if the vice president is also not there, then the Chief Justice of India will discharge. If he is not there, the next senior most judge. If he is not there, the next senior most judge. इतनी आगे तक जब पहुंचते नहीं है बात. ठीक है? So this is the way the president's position always remains filled. It shall never be vacant. ठीक है? There shall always be a president of India. अब
हाउ इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इलेक्टेड? अब थोड़ा आपको थोड़ा यहां पे कॉम्प्लिकेशन आएगी, ठीक है? अब थोड़ा मैं आपको समझा, तो आपको चीज लिखनी क्या है सबसे पहले जो आपके नोट्स में नहीं है। फर्स्टली आपको क्या लिखना है, लिखिए, नॉर्मली मैंने आज ना, वैसे ये क्वेश्चन पहले मेंस में आता था बड़ा सिंपल, हाउ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड, उसको भी लोग गलत आंसर करके आए। They start with, sir, elected by electoral college consisting of elected members of both houses of parliament and state assemblies, etc., by system of proportional representation, single transferable vote, etc. लिख के आ जाते। No. When a question, वैसे तो पेयर नहीं होगा, ठीक है, लेकिन the president of India is elected, number 1, as per the provisions of the constitution। पहले ये लिखोगे और उसमें प्रोविजंस कौन सी बताओगे, 54। नहीं भी याद रही तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल ये लिख दे रहा, प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 55, 58, 62 एंड आर्टिकल 71। 54 talks about the electoral college, composition of electoral college. Okay, 55 talks about the procedure, 58 talks about qualifications, 62 it talks about timing of the president's election, and 71 talks about if there are disputes in election to president and vice president both। जब भी कोई डिस्प्यूट होता है प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन में, who will be the deciding authority? That will be the Supreme Court, वो 71 में लिखा हुआ है, and the decision of the Supreme Court shall be final। अब सुनते जाओ आगे। The president of India is elected according to the provisions of the constitution। लिखने की जरूरत नहीं है, अभी सारी पढ़ेंगे हम ये, ठीक है? सिर्फ इतना लिखो, provisions of the constitution। Number 2, as per the provisions of the President and Vice President Elections Act 1952, लिखिए इसको, President Vice President Election 1952, and thirdly President and Vice President Election Rules 1974। Okay, so this is the complete answer। How is the President of India elected? So opening statement होनी चाहिए according to the provisions of the Constitution। ये सारे आर्टिकल्स याद रखने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है? 54 talks about the composition of electoral college, 55 the procedure, 58 talks about qualifications to contest, 62 talks about when the election is supposed to be held, and 71 talks about disputes in election of, 71 covers disputes of both vice president and president election, right? And secondly, according to the provisions of the President and Vice President Elections Act 52 and President and Vice President Election Rules 1974, ये आपको लिखना, आपके नोट्स में नहीं है। उसके बाद whatever I'm going to discuss will be in the notes, ठीक है? चलो, जहां में नहीं होगा I'll make you right। I hope this point is clear। इलेक्शन रूल 74 के हैं और ये जो लॉ है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन एक्ट 1952। ओके, नाउ लेट्स कम टू आर्टिकल 54। एक एक करके सारे आर्टिकल पढ़ेंगे, राइट? लेट्स रीड आर्टिकल 54 फर्स्ट। The president shall be elected by members of electoral college। We don't elect the president। The president's election is indirect। Okay, हम तो इलेक्ट करते हैं ना अपने एमपीज वगैरह को, अपने एमएलएस को, ठीक है, अपनी सरकारों को इलेक्ट करते हैं, पर प्रेसिडेंट का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है। So also the vice president, right? The president shall be elected by members of an electoral college consisting of only the elected members of both houses of parliament, not nominated ones, and only the elected members of legislative assemblies of the states. And in this article and in Article 55, the next following article, the state includes National Capital Territory of Delhi and the UT of Pondicherry, that is Puducherry, and subsequently it will also include the UT of Jammu and Kashmir. Okay. So MLAs not just of the states, MLAs of those UTs also which have a legislative assembly। तो इस समय 3 है अब, ठीक है, जम्मू कश्मीर इंक्लूड हो जाएगा सब्सिक्वेंटली। तो आपका दिल्ली है, पुडुचेरी है और साथ में आपका जम्मू एंड कश्मीर है, ठीक है? तो उनके जो एमएलएज हैं, इलेक्टेड एमएलएज, वो भी वोट करते हैं, ठीक है? अब बेटा अब कॉन्स्टिट्यूशन को बंद कर दो अपनी, अब हम थोड़ी बात कर लेते हैं अबाउट सम इश्यूज, वो आपके नोट्स के अंदर है। अच्छा बेटा, एक छोटा सा इशू मैं पहले ही बता देता हूं आपको, ठीक है? ये आपके नोट्स में है। अभी लोकेश ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था आरपीए के बारे में, और मैंने उसको बोला कि मैं आरपीए इतनी डिटेल में पढ़ाऊंगा कि यू कैन परफॉर्म द ड्यूटीज ऑफ अ रिटर्निंग ऑफिसर फ्रॉम टुमारो। देखो बेटा, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, जैसे अभी बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं, हर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी में जब असेंबली इलेक्शंस होते हैं या फिर लोकसभा इलेक्शन होते हैं, तो हर लोकसभा की कॉन्स्टिट्यूएंसी में अ सीनियर ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट, यूजुअली द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, इज अपॉइंटेड एज अ रिटर्निंग ऑफिसर।
Returning officer is a key figure in management of elections in his constituency. ठीक है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में रिटर्निंग ऑफिसर अपॉइंट होता है. क्या काम होता है इसका? भाई जब कोई नॉमिनेशन फाइल करता है इलेक्शन लड़ने के लिए, किसके पास फाइल करता है? आरओ के पास, रिटर्निंग ऑफिसर के पास, राइट. जो नॉमिनेशन करेक्ट है, सारी इंफॉर्मेशन उसमें करेक्ट है कि नहीं है, वो स्क्रूटनी कौन करता है? आरओ करता है, रिटर्निंग ऑफिसर करता है. इफ देयर इज समथिंग रॉन्ग विद द नॉमिनेशन फॉर्म, कुछ इंफॉर्मेशन गलत है, उस बेसिस पे एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है? नॉमिनेशन पेपर को रिटर्निंग ऑफिसर के पास है. ठीक है. एंड आफ्टर दैट ही हैज टू मैनेज द एंटायर इलेक्शन कैंपेन पीरियड, मेक श्योर दैट जो आपकी, यू नो दैट देयर आर लिमिट्स ऑन इलेक्शन एक्सपेंडिचर फॉर कैंडिडेट्स, एवरीबडी इज ऑब्जर्विंग दोज लिमिट्स. ठीक है, कि उसके बियॉन्ड नहीं जा रहा है, राइट, कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट नहीं होता है. देन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फ्री एंड फेयर इलेक्शन ऑन पोलिंग डे. Then is responsible for free and fair and proper, accurate counting of the votes which have been received by different candidates. And then he is also responsible for declaration of the results. Right? What it means is, right from rejecting and accepting nomination forms to the final declaration of result in a constituency, the responsibility is given to a senior officer of the government, usually the district collector in a district, who is designated as the returning officer. Okay? शुरू से लेके एंड तक, फ्रॉम द वूम टू द टूम, फ्रॉम द क्रेडल टू द ग्रेव. शुरू इलेक्शन होता है जब आपके नॉमिनेशन फाइल होते हैं, नोटिफिकेशन आती है इलेक्शन की, नॉमिनेशन फाइल होते हैं आपके, और उसके बाद शुरू होता है आपका वो स्क्रूटनी ऑफ नॉमिनेशंस. फिर पूरा इलेक्शन कैंपेन पीरियड वो सुपरवाइज करता है. इलेक्शन डे जिस दिन वोटिंग होती है, ही मेक श्योर फ्री एंड फेयर पोलिंग टेक्स प्लेस, एंड देन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रॉपर काउंटिंग ऑफ वोट्स एंड द डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट्स. ठीक है. अब हर इलेक्शन में कोई ना कोई रिटर्निंग ऑफिसर होगा, और जो आपके जो ऑर्डिनरी इलेक्शंस होते हैं उसके अंदर तो रिटर्निंग ऑफिसर, मैंने बताया ना, वो तो डीएम आपके, कई बार डीएम भी होते हैं, कई बार एडीसी एडीएम से होते हैं, वो भी बन जाते हैं रिटर्निंग ऑफिसर्स, राइट. हु इज द रिटर्निंग ऑफिसर इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन? क्योंकि उसमें भी तो नॉमिनेशन फाइल होते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, उसमें भी स्क्रूटनी होती है उसमें भी काउंटिंग ऑफ वोट्स होती है, उसमें भी डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट होता है. अच्छा, लोकसभा एंड राज्यसभा बोथ हैव देयर ओन सेक्रेटेरिएट्स. दोनों के अपने अपने सपोर्टिंग स्टाफ हैं, दे आर कॉल्ड देयर सेक्रेटेरिएट्स. Each secretariat is headed by the Secretary General. Secretary General. So the returning officers for presidential election are Secretary Generals of Lok Sabha और राज्य सभा by rotation. रोटेशन का मतलब क्या हुआ? अगर इस बार इस presidential election में लोकसभा का Secretary General was the returning officer for presidential election, in the next presidential election राज्यसभा का सेक्रेटरी जनरल वुड बी द रिटर्निंग ऑफिसर फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ओके, ये आपके नोट्स में लिखा हुआ है, करेक्ट. अच्छा बच्चे, अब एक इशू ये है कि व्हाई आर वी नॉट हैविंग डायरेक्ट इलेक्शंस फॉर द प्रेसिडेंट? देखो बेटा, पहली बात तो यही है ना, डायरेक्ट इलेक्शंस करके करोगे क्या? मतलब द प्रेसिडेंट इज सपोज्ड टू बी अ नॉमिनल हेड. ही डजंट हैव द रियल पावर ऑफ द गवर्नमेंट, रियल हेड ऑफ द गवर्नमेंट. ही इज द हेड ऑफ स्टेट, नॉट द हेड ऑफ गवर्नमेंट. ये तो डिस्टिंक्शन होती है आपके पार्लियामेंट्री सिस्टम में बिटवीन हेड ऑफ स्टेट एंड हेड ऑफ गवर्नमेंट, जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम में नहीं होती. He is supposed to be a constitutional head. He is supposed to be a nominal head. कई बार एक टर्म यूज की जाती है, ये लैटिन फ्रेजेस यूज किए जाते हैं. He is supposed to be a de jure. De jure means nominal head, and the de facto, in fact, head is the prime minister of the government. प्राइम मिनिस्टर होता है, वो एक्चुअल हेड है ना गवर्नमेंट का, तो वो de jure head है, nominal head है आपके. ठीक है. So you know what they say is that eventually, if somebody is to be elected, and he is going to be a nominal head, constitutional head, who is supposed to act on the advice of Council of Ministers only. The government is not actually run by him, it is run by the Prime Minister and the Council of Ministers. Then it would be a fantastic waste of taxpayers' time, money and energy to have a direct election for this. For one position, 140 crore लोग हैं, 100 crore वोटर्स हैं इंडिया के अंदर, इस समय 100 करोड़ टाप चुके हैं, अब 18 है हमारे. ठीक है, तो 100 करोड़ वोटर्स का एक आदमी को इलेक्ट करने के लिए, और उस आदमी को इलेक्ट करने के लिए जिसके पास कोई रियल पार्स नहीं है, ही सपोज टू जस्ट ही इज अ नॉमिनल हेड्स. हालांकि ऐसा नहीं कि कोई पार नहीं है उनके पास, एज फार एज द पोजीशन ऑफ द प्रेसिडेंट इज कंसर्न्ड, वो आपको बहुत डिटेल में समझाऊंगा, राइट. कि इट्स नॉट अ रबर स्टैम्प, दैट इज समथिंग व्हिच यू शुड कीप इन माइंड ऑलवेज. जो बहुत लोग सोचते हैं इज लाइक अ रबर स्टैम्प ओनली, राइट? नो, ही इज नॉट एनी व्हिच वे. तो प्रॉब्लम इज कि भाई हिज इलेक्शन इज इनडायरेक्ट बिकॉज वेल ही इज सपोज्ड टू बी अ नॉमिनल हेड, डी जोरे हेड. And you know, apart from being a fantastic waste of taxpayers' time, money and energy, look at the logistical nightmare of conducting an election for 100 crore people to elect just one person. What the idea?
एक तो ये रीजन है। दूसरा बेटा प्रॉब्लम पता है क्या है, डायरेक्ट इलेक्शन कैन लीड टू, एक बात बताऊं मुझे, अब जब आपका बिहार में इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, हो रहा है इलेक्शन बिहार में, राइट, वहां पे लोग जब पॉलिटिकल लीडर्स हैं, चाहे मोदी जा रहे हैं, चाहे अमित शाह साहब जा रहे हैं, चाहे राहुल गांधी जा रहे हैं, या फिर तेजस्वी यादव जा रहे हैं, सब अपनी कैंपेनिंग कर रहे हैं, किस बेसिस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं? कोई कह रहे हैं हम वो जीविका दीदी को इतने पैसे दे देंगे, परमानेंट कर देंगे, हर सरकारी घर में, हर घर के अंदर एक गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट दे देंगे, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। दीज आर इश्यूज ऑन विच दे आर मेकिंग ऑल देयर प्रोमिसेस, ठीक है, बनाने की कोशिश की जा रही है इशू बेस्ड सिलेक्शन, राइट, गरीबों के लिए क्या करेंगे, ये क्या करेंगे, एंड देन द गुड थिंग, इंपॉर्टेंट थिंग इज ना, व्हेन दे कम आउट विद देयर मैनिफेस्टो लिस्ट ऑफ प्रोमिसेस एंड व्हेन दे कम टू पावर, दैट मैनिफेस्टो नाउ बिकम्स देयर मैंडेट। मैंडेट का मतलब क्या है, आपकी मैनिफेस्टो की प्रोमिसेस पे भरोसा करके लोगों ने आपको इलेक्ट किया है, अब ये मैंडेट बन गई है, मैंडेट मतलब अब ये करो। एंड नाउ द चीफ मिनिस्टर और द प्राइम मिनिस्टर हैज ऑल द पावर इन द वर्ल्ड, ही हैज एन एंटायर ब्यूरोक्रेसी, ही हैज द कंट्रोल ऑफ द एंटायर बजट, he has the control of the assembly, बजट तो पास हो गए होगा, मेजोरिटी में असेंबली में मेजोरिटी है या लोकसभा में मेजोरिटी है, तभी तो आप प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर बने हो, राइट। सो द इलेक्शन इज फॉट ऑन दिस बेसिस कि हम हेल्थ के लिए करेंगे, एम्प्लॉयमेंट के लिए करेंगे, चीजें करेंगे, एंड व्हेन यू कम टू पावर you have the capacity, you have the bureaucratic machinery, the instrumentalities, the paraphernalia, the money, the budget, everything is in your control to do and fulfill those promises. Our point is, on what issues will, if we had a direct election to the post of president, किन issues पे लड़ा जाता है, किन issue पे लड़ा जाएगा? Will the presidential candidates, if they are contesting a direct election, go to the people and say, okay, we will create 2 crore jobs, I will create 2 crore jobs per year? अरे भाई, you are supposed to be a nominal head, you don't have real powers. ये इलेक्शन इशू बेस्ड हो ही नहीं सकता। तो जब 2 कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट के लिए, 4 कैंडिडेट्स प्रेसिडेंट के लिए डायरेक्ट इलेक्शन लड़ेंगे, तो किस बेसिस पे लड़ेंगे कि I will give 1 job to every family in government? You can't do this. That part, you are supposed to act on the advice of council of ministers. So this election will be an issueless election. Election will not be based on real issues. It could be based on, at the most, personal issues. People may be tempted to vote for the candidates on the basis of their caste, their maybe community, etc., etc. ये सब हो जाएगा, ठीक है? तो it would be an issueless election. Election should be issue-based. एक तो ये कारण है। तीसरा, बेटा, understand one thing. Who's the prime minister of the country? I'm not asking you who's the prime minister of the country. Modi ji was not chosen as the prime minister of the country by us. No. He was chosen to be the prime minister by his party. We voted for the BJP to make sure that he becomes the prime minister. Many people voted for the BJP to make sure that he becomes the prime minister. That is right. But after all, Modi ji got elected from where? From the entire country. First and foremost, he is only an MP of the Lok Sabha. ये MP हैं, वाराणसी से MP हैं, एक constituency से MP हैं. He's just been elected by one constituency, and his members of his political party have chosen him to be the prime minister. But he was elected by just one constituency, एक छोटी सी constituency out of 543. If president's election is direct, he will be elected by the entire country. You know, यहाँ पे एक प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है, मैं नहीं कहता होगी, लेकिन ये ना एक इशू डिस्कस किया जाता है. If somebody becomes the president elected by the whole country, God knows he might start to misread his position. संविधान में तो है कि भाई you are supposed to act on the advice of council of ministers. He may, start misreading his position in such a way that who is the prime minister elected by one constituency only? He is prime minister because the political party has, selected him to be the prime minister. अरे मुझे तो पूरे देश ने elect किया है. He might start misreading his position. He might start attributing to his own position some real powers, and that could lead to the emergence of the evolution of 2 power centers, leading to tensions conflicts between the president and the prime minister. Anything can happen. एक ये भी reason है, ठीक है? Because it is possible कि somebody could mislead his position कि मुझे तो पूरा देश ने elect किया है, आप तो एक constituency से आए हो, ठीक है, आप प्राइम मिनिस्टर बन गए हो, लेकिन आपको आपके पार्टी ने प्राइम मिनिस्टर बनाया है, लेकिन इलेक्शन तो आपका एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी हुआ, मेरे को तो पूरे देश ने इलेक्ट किया है. That could lead to all kind of setting up of rival party centers and all kind of friction and all kind of other things. अच्छा बेटे, एक और रीजन है कि why we have a indirect election. देखो बेटा, डायरेक्ट इलेक्शन बिहार में देख ही रहे हो क्या हो रहा है, ठीक है? कैसे कैसी भाषा बोली जा रही है दोनों तरफ से. एक तरफ किसी को मैं इसमें स्पेयर नहीं करता, दोनों तरफ से बोली जा रही है भाषा, ठीक है?
there is so much mudslinging, there is so much smearing, there is so many personal attacks, ठीक है, and there is so much campaigning done by party cadres. अब प्रॉब्लम पता है क्या, डायरेक्ट इलेक्शन होगा तो हर पार्टी का जो कैंडिडेट होगा उसके जो लोग होंगे they will work day and night to get him elected, and when he gets elected he will always have a bias towards his own political party because of their hard work he got elected. We don't want that. We want a person in Rashtrapati Bhavan, Raisina Hill पे जहां बना हुआ ना उसको राइजीना हिल कहते हैं, राइजीना हिल के अंदर we want a person who is a statesman and who has the capacity to rise above party politics. Indirect elections काम होते हैं, शांत होते हैं, उसके अंदर जो कैंडिडेट्स होते हैं वो कैंपेनिंग नहीं करते हैं, एक दूसरे के साथ गाली गलौज नहीं करते हैं, पब्लिक स्मेयरिंग नहीं करते हैं एक दूसरे की, they don't throw mud at each other, they don't engage in mudslinging battles etc. भाषा नहीं बोलते, कोई कैंपेनिंग वगैरह थोड़ी होती है इसकी. So this enables us to finally, अच्छा मैं ये नहीं कह रहा कि हर बार statesman elect होगा ही होगा, but the idea is that indirect election will, at least there's a likelihood that we will be able to elect a person who's a statesman, who can act like a statesman, who can act like, and president is supposed to be the symbol of the unity and integrity of the country, and who can rise above party divides and party politics and act truly as the head of state of the nation. That is why we went for the indirect election. ठीक है, अच्छा अब दूसरी बात, ये सिंपल सी बात है, you read that only elected members are allowed to vote in this election, elected members of both houses of parliament and elected members of legislative assemblies only. Why only elected? Why not nominated? पहले तो बेटा आपकी लोकसभा के अंदर भी 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेट होते थे और असेंबलीज के अंदर भी 1 एंग्लो इंडियन वाज नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट. प्रेसिडेंट यूज्ड टू नॉमिनेट 2 एंग्लो इंडियंस इन योर लोकसभा. वो तो खत्म हो गया आफ्टर द 104th अमेंडमेंट एक्ट 2020, लिखा हुआ है आपके नोट्स के अंदर, वो तो खत्म हो गया. राज्यसभा में तो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं आपके, देयर आर 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स, दे आर नॉट अलाउड टू वोट इन दिस इलेक्शन. नंबर 1 बाय one reason, they are not elected, they are nominated, they don't carry the mandate of people. But most importantly, who nominates them? The president. On whose advice? The prime minister. So it's almost like a special favor given to some people. From which areas are these people nominated? 12 members nominated in Rajya Sabha from fields like art, science, who have accomplished, who have achieved a lot of accomplishments and who have done a lot of things in the field of art, science, literature, सोशल सर्विस एटसेट्रा, वहां से इनको नॉमिनेट किया जाता है. तो दे मे सी दिस एज अ वेरी बिग फेवर फॉर देम कि उनको एमपी बना दिया गया, नॉमिनेट कर दिया गया. एंड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन एवरीबडी शुड वोट अकॉर्डिंग टू देयर कॉन्शियंस. अपने हिसाब से देखें किसके लिए वोट करना है. हालांकि पार्टी लाइंस में वोटिंग होती है इसमें भी, बट कम से कम ये एक्सपेक्टेड होता है यार कि आप अपने हिसाब से वोट करो, राइट. तो क्योंकि एक नॉमिनेटेड मेंबर को नॉमिनेशन हैज बीन गिवन बाय द प्राइम मिनिस्टर और द चीफ मिनिस्टर, राइट. So he may be obliged to vote for the candidate of the prime minister's party. कि मुझे तो इन्होंने नॉमिनेट किया तो मैं तो इनके कैंडिडेट के लिए वोट करूंगा. So their voting behavior can be influenced in presidential elections. अब एक अजीब बात ये है कि थोड़ी सी ओवरसाइट भी मुझे लगती है, ओवरसाइट नहीं है वैसे, ठीक बात है ये तो, कि भाई they are not allowed to vote in elections to the post of president, the nominated members of the Rajya Sabha, for example, right? But when it comes to removal of the president, impeachment of the president, they are allowed to vote in that. ठीक है, अब वो आगे बताऊंगा वो क्यों होता है. So, nominated members are not allowed to vote. एक तो they are not elected because, and therefore they don't carry the mandate from the people. ये जनरल बात है. और दूसरा, their voter behavior can be influenced because people who are nominated are, it's possible, I'm not saying always, it's possible they may be obligated towards the prime minister or the chief minister who nominated them to vote for their party's candidate in presidential election. ठीक है. अच्छा बच्चे, अब हेड ऑफ स्टेट जो है सेंट्रल लेवल पे हमारे प्रेसिडेंट है, ठीक है. स्टेट लेवल पे गवर्नर है. तो स्टेट लेवल पे भी तो गवर्नर हेड ऑफ स्टेट है. स्टेट का अपना हेड ऑफ स्टेट है गवर्नर, सेंटर का अपना हेड ऑफ स्टेट है, दैट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. ठीक है. अब सवाल खड़ा होता है इलेक्टोरल कॉलेज के अंदर एमएलएस क्या कर रहे हैं? एमएलएस का क्या जरूरत है यहाँ पे? मतलब सिर्फ एट द सेंटर दे ऑलरेडी हैव देयर ओन हेड ऑफ स्टेट, दैट इज द गवर्नर इन द पोजीशन ऑफ द गवर्नर, व्हाइल द सेंटर हैज इट्स ओन हेड ऑफ स्टेट, दैट इज द प्रेसिडेंट. देखो बेटा, व्हाई एमएलएस आर इंक्लूडेड, उसके दो कारण. Number 1, if MLAs were not included, तो फिर तो बेटा जो प्रेसिडेंट बनेगा he will be a creature of the majority party at the center. बात खत्म ही होगी फिर तो. जिसके पास मेजोरिटी है सेंटर में उन्हीं का प्रेसिडेंट बनेगा फिर तो. ठीक है, that's all. That is there. He will be a creature of the majority party of the center and would be a pale shadow of the prime minister, nothing more than that. Right? We don't want that. Right? And secondly, understand one thing. The president is not merely the head of the union executive here.
He is indeed the chief of the nation. He is the chief of the nation. To symbolize and to reinforce this sentiment, reinforce this idea, MLAs are also a part of the electoral college. Otherwise, as I said, if MLAs were not a part of the electoral college, तो फिर जो जिसकी मेजॉरिटी है पार्लियामेंट के अंदर, जो सरकार बना के बैठे हैं, हमेशा उन्हीं का कैंडिडेट इलेक्ट होगा. अब अगर एमएलएस भी इंक्लूडेड है बेटा, तो फिर आपको डिफरेंट पार्टीज की सपोर्ट चाहिए होती, बिकॉज डिफरेंट स्टेट्स हैव डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज इन पावर. उनकी भी सपोर्ट चाहिए होगी आपको, ठीक है ना. सो एंड दिस विल आल्सो इनेबल अस टू इलेक्ट अ स्टेट्समैन, दैट्स द राइट. और फेडरल बैलेंस भी होगा इसके अंदर. एंड व्हाट डिड आई से, दैट द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज नॉट जस्ट द हेड ऑफ द यूनियन एग्जीक्यूटिव, ही इज द चीफ ऑफ द नेशन. This reason, MLAs are included. But members of legislative councils are not included. But one reason is very simple. Why not included? Because legislative councils don't exist in all the states. नहीं करते, exist. और इनके मेंबर भी बेटा, many of them are nominated legislative councils के. कुछ इनडायरेक्टली इलेक्ट होते हैं मेंबर्स, वो तो कॉम्पोजिशन में बताऊंगा आपको, व्हेन आई कम टू स्टेट लेजिस्लेचर एटसेट्रा, ठीक है. बट प्रिंसिपल रीजन इज दिस ओनली, दे डोंट एग्जिस्ट इन ऑल द स्टेट्स, ठीक है. और बेटा बड़ी बात पता है क्या है, हाउ इज अ लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएटेड और अबॉलिश्ड? बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ. हाँ, रियली बाय सिंपली बाय पार्लियामेंट, बाय लॉ. आई गिव यू एन एग्जांपल. सुनो, अ स्टेट व्हिच हैज ओनली अ लेजिस्लेटिव असेंबली, a state that has assembly and council both. This state wants to create a legislative council. ये initiative states के पास है. The state assembly has to pass a resolution by a special majority of 2/3, demanding that we need a constituent assembly. They pass a resolution by special majority of 2/3, same majority that is required to amend the constitution, 2/3 plus it should be the majority of the house, right? जब स्टेट असेंबली ने रेजोल्यूशन पास कर दी, उसके बाद पार्लियामेंट सिंपली बाय लॉ, पास बाय सिंपल मेजॉरिटी, कैन क्रिएट द लेजिस्लेटिव काउंसिल फॉर द स्टेट. ठीक है, ओके. नाउ हियर द मेथड ऑफ क्रिएशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड इन दिस स्टेट द मेथड ऑफ एबॉलिशन is the same. Same है. For creation as well as for abolition, the assembly has to pass a resolution by special majority, and then parliament by law will create it here or abolish it over here. तो एक काम करते हैं ना, जो रूलिंग पार्टी सेंटर में है, let us say it is in, and the present ruling party is in power in so many states. ठीक है. प्रेजेंट रूलिंग पार्टी की अगर स्टेट्स के अंदर 2/3 मेजोरिटी आ गई असेंबली के अंदर, तो इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन किस तरह की मैनिपुलेशन हो सकती है? दे कैन सिंपली आस्क देयर wherever they are in power, the central party wherever they are in power, and wherever they have this much, they can manage this much majority. Simply ask the assembly to pass a resolution. We will create a council, and because of the nature of election of type procedure of election legislative council, it's easy for the ruling party to pack this council with its favorites, with its loyalists. So, matlab, the method of creation and abolition of a legislative council can be used by the central ruling party at the center for gaining an unfair electoral advantage. जहां पे काउंसिल है वहां पे अबॉलिश भी कर सकते हैं, जहां पे नहीं है क्रिएट करो, अपने लोगों को इलेक्ट करवाएंगे इसके अंदर और फिर उनसे वोट दिलवाएंगे अपने कैंडिडेट के लिए. Another reason why legislative councils are not included. One, basically because they are not there in all the states. Very few states have legislative councils. वो basic reason है आपका. ठीक है जी. अच्छा, अब बेटा आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आइए अब आर्टिकल 55 पे, द प्रोसीजर फॉर इलेक्शन. अब मेरे को लगता है आज मेरा जो बाकी लेक्चर है ना, ये इसी पे जाएगा. प्रोसीजर फॉर इलेक्शन टॉक्स अबाउट आर्टिकल व्हिच इज टॉक्ड अबाउट इन आर्टिकल 55. सुनो ध्यान से, धीरे धीरे समझ आएगा. इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, आर्टिकल 55 सेज two principles have to be followed. How many? लिखने की जरूरत नहीं है, नोट्स में भी है, ये आर्टिकल के अंदर भी लिखा हुआ है. Uniformity in the scale of representation between states,
And number 2, parity between the union and the states. ठीक है, अभी समझ नहीं आएगा आपको ये क्या दो प्रिंसिपल्स हैं? यूनिफॉर्मिटी in the scale of representation between the states and parity between the union and the states. अब मैं जरा एक्सप्लेनेशन दे दूं पहले आपको. देखो बेटा, ऐसा है, इन द रेगुलर इलेक्शंस, जैसे बिहार में इलेक्शन हो रहे हैं जहां पे लोग वोट करेंगे, लोकसभा इलेक्शन में हम वोट करते हैं, हर अपने असेंबली इलेक्शन में वोट करते हैं, राइट? वी फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट, वन मैन वन वैल्यू वन वोट, ये फॉलो करते हैं. बट लुक एट द इलेक्टोरल कॉलेज टू फॉर द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट. इट कंसिस्ट ऑफ एमपीज एंड एमएलएस. कैन वी फॉलो द सिस्टम ऑफ वन मैन वन वोट ओवर हियर? नो. एंड आई टेल यू व्हाई. बिकॉज ऑफ द डिफरेंसेस इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन. मैं आपको एक बात समझाता हूं. इन दिल्ली की असेंबली में कितने एमएलएस हैं? 70 MLAs represent the entire National Capital Territory, NCT of Delhi. How many Lok Sabha MPs are there in Delhi? 7. The 7 Lok Sabha MPs also represent the entire NCT, National Capital Territory of Delhi. That means the parliamentary constituency has to be bigger than an assembly constituency. कई बार तो होता है कि जैसे इसमें अगर रेशो देखो तो एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर कम से कम 10 एमएलए की कॉन्स्टिट्यूएंसी होगी. जो कॉट माय पॉइंट ओवर हियर ना, बड़ी सीधी सी बात है बेटा. ठीक है, अब आपकी जैसे उत्तर प्रदेश में 400 से ऊपर के एमएलएज हैं आपके असेंबली के अंदर और 80 सीट्स हैं आपकी लोकसभा के अंदर उनकी. गेटिंग द पॉइंट? सेम पॉइंट आई एम अप्लाइंग ओवर हियर. एमएलएज रिप्रेजेंट अ मच स्मॉलर सेट ऑफ पॉपुलेशन एंड एमपी रिप्रेजेंट्स, in Delhi for example, almost 10 times more population than an MLA represents. मतलब एक लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 543 across the country. How many MLAs across the country? 4,000 plus. तो 543 की जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज है उसके अंदर छोटी छोटी MLA कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती है, राइट? So an MP represents a much larger set of population than an MLA. So we cannot follow the principle of one man one vote over here. MP should be given a value of vote, या number of votes which are higher than MLAs. This means this election wants us to first of all calculate the value of votes of MLAs and MPs, because the principle of one man one vote cannot be followed simply because of the difference in the scale of representation between MLAs and MPs. MPs representing a much larger set of population versus an MLA where constituencies are very small. Okay. So we have to find the value of vote of MLAs and MP. What does Article 55 say? And how do you find out the value of vote of an MLA? The population of the state, any state A. Okay. Population of the state as per 1971 census. सब कुछ is frozen in 1971. Why do you think that there has been no increase in the number of Lok Sabha seats since 1972? तब से फिक्स हो रखी है. मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता था हर 10 साल के बाद सेंसस होगा, पॉपुलेशन बढ़ेगी, नंबर ऑफ सीट्स इन लोकसभा विल हैव टू बी इंक्रीज्ड. और 1971 के बाद फ्रीज लग गया 2002 तक. 2002 के बाद फिर से फ्रीज को एक्सटेंड कर दिया till the first census to be held after the year 2026. ये क्यों हुआ था? Problem is South Indian states even today they clamor this thing that if after every election the number of seats, after every census 10 years, that the number of seats in assemblies and Lok Sabha are to be increased, and then increase in the number of seats, how will they be distributed amongst the states? So the states which experience higher increase in population will get higher seats. जितनी भी seats increase होंगी तो ज्यादा सीट्स किसको मिलेंगी? उनमें से इंक्रीज सीट्स में से जिसकी पॉपुलेशन ज्यादा है. अब साउथ इंडियन स्टेट्स वर सेइंग कि भैया वी आर ट्राइंग टू इंप्लीमेंट द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सीरियसली, वी आर ट्राइंग टू स्टेबलाइज द पॉपुलेशन. नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रहा है. एज सच साउथ इंडियन स्टेट्स, वो कहते हैं ना, द रूट टू दिल्ली गोज थ्रू प्रयागराज. यू विन यूपी, यू विन दिल्ली.
अब इस बार देख लो आप, इस बार यूपी में बीजेपी ठीक से परफॉर्म नहीं कर पाई, दिल्ली हाथ से गया, मतलब दे आर स्टिल इन पावर बट दे आर नॉट हैविंग अ क्लियर मेजॉरिटी। एंड इन द प्रीवियस टू इलेक्शंस दे परफॉर्म्ड मतलब फ्लॉलेसली इन गॉट मेजॉरिटी ऑफ द सीट्स इन यूपी। तो यूपी जीते बगैर बेटा कौन अपने आप अपने बूते पे सरकार बना सकता है? कोई पार्टी नहीं बना सकता विद इट्स ओन मेजॉरिटी। ठीक है, अब साउथ इंडियन स्टेट्स कहती है कि भी नॉर्थ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हो रही है, नॉर्थ इंडियन चीफ मिनिस्टर्स हैव नॉट टेकन द फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम सीरियसली। तो जब भी इंक्रीज होगी सीट्स एवरी 10 ईयर्स तो हमको लॉस होगा, क्योंकि हमारी इंपॉर्टेंस वैसी कम होती जा रही है सेंट्रल पॉलिटिक्स में, और कम होती जाएगी, राइट? तो एवरीथिंग गॉट फ्रोजन एट 1971 only, even the value of vote of MLA। जनाब मेरे को बात बताओ, चलो अभी आपको वो क्वेश्चन मैं आपको पूछता हूं। What is the formula for calculating the vote of an MLA of, let us say, any state? Population of the state varies across states. Population of the state as per 71 census, okay, divided by the number of elected MLAs of that state. Okay, do this first calculation. Right now, after this first calculation, let us say the remainder. Let us say the figure comes 1700. Okay. This figure is to be further divided by 1000. ठीक है, अब छोटे बच्चों की तरह करें जरा, ऐसे बना के 1 जा 1000, remainder 700. If the remainder is 500 or more, 500 or more, then this is rounded off to 2. अगर ये 1700 की जगह होता 1200 डिवाइडेड बाय 1000 करो, 1200, 1 जा 1000, remainder is 200, it is less than 500, it is ignored. If the remainder is 500 or more, then this is rounded off to 2. Value of vote of one MLA or the number of votes an MLA will cast, या value of vote बोल दो या number of votes it will cast. MLA of one MLA of this state A will cast 2 votes. मिल गया? ठीक है, कितने एमएलए हैं यहां पे? चलो एज्यूम कर लेते हैं कि यहां पे एमएलए हैं 100 इस स्टेट में, ओके, एंड द टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज, एक स्टेट के एमएलएज के वोट सेम होते हैं, टोटल नंबर ऑफ वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ द स्टेट वुड बी 100 into 2 equals 200. आई एम सॉरी 200. ठीक है, we found out the total number of votes will be cast by MLAs of state A, one state. Can we find out the same number for all the other states and the UTs with assembly? We can. But because of the difference in population and difference in MLAs, the value of votes of MLAs across the states would be different. क्योंकि population different है और number of MLAs भी different है, तो उसी के कारण यूपी के एमएलए की जो वोट है, नंबर ऑफ वोट्स ही इज अलाउड टू कास्ट इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन इज 208, और सिक्किम की कितनी है? देखो कितना फर्क है, जस्ट 7. ठीक है, जिस साल प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है ना, इस साल तो मैं आपको वो लिस्ट तो यार आप खुद भी देख सकते हो, गूगल करके देख लेना। लास्ट ईयर जो इलेक्शन हुआ था, जो लास्ट प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, उस समय उन्होंने एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन पूछ लिया था प्रीलिम्स के, एंड आई लव दैट क्वेश्चन। यू नो, यूपीएससी ऑलवेज लुक्स एट यूनिकनेस इन द थिंग्स। उन्होंने पता क्या पूछा था? विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू? द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ अ केरला एमएलए इज मोर देन दैट ऑफ मध्य प्रदेश। स्टेटमेंट करेक्ट है कि गलत है? ये सवाल मैंने जब भी बोला था, मैं पूछूंगा आपसे। वैल्यू ऑफ वोट ऑफ केरला छोटी स्टेट है, पॉपुलेशन छोटी है, ठीक है, मध्य प्रदेश बहुत बड़ी स्टेट है, पॉपुलेशन ज्यादा है, एमएलए भी ज्यादा है, तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एन एमएलए ऑफ मध्य प्रदेश वुड बी हायर देन केरला? नो, बिकॉज बेटा मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन कम हो गई है। कैसे? छत्तीसगढ़ भी तो निकल गया वहां से। व्हाट माय पॉइंट ओवर हियर? तो जहां पे लोग कंफ्यूज होकर गलत आंसर देंगे, वो यूनिक चीजें वो आपकी यूपीएससी पूछती है। क्योंकि उस साल जब प्रेसिडेंट का इलेक्शन हुआ था, हमारी जो अभी प्रेसिडेंट है, प्रेजेंट प्रेसिडेंट, उनका जब इलेक्शन हुआ था, तो उस साल उन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था कि वैल्यू ऑफ वोट्स। देखो यू डोंट हैव टू मेमोराइज दैट व्हेन यू लुक एट, यू नो। अच्छा, एक और चीज मैं आपको एग्जांपल देता हूं। very often they ask questions like this: which of the following subjects is not in the union list?
नॉट इन द स्टेट लिस्ट या इन द स्टेट लिस्ट और इन द यूनियन लिस्ट और इन द कंकरेंट लिस्ट, ऐसे सवाल पूछते हैं प्री के अंदर। यार आप मुझे आप कहोगे सर तो पागल होने वाली बात है, आर वी सपोज टू मेमोराइज ऑल द सब्जेक्ट्स नाउ? नो, नॉट फॉर इवन फॉर अ सेकंड। जिस साल जो टॉपिक इंपॉर्टेंट बन जाता है ना करंट के अंदर, वो उसके अकॉर्डिंग से पूछते। और दूसरी बात, आप मुझे खुद बताओ, वेयर विल डिफेंस बी इन द 3 लिस्ट्स? डिफेंस ऑफ द कंट्री कहां होगा? यूनियन लिस्ट में होगा ना बेटा। आर्मी तो यूनियन के अंदर ही होती, रेलवेज कहां पे होगी? यूनियन लिस्ट के अंदर ही होगी। आपने सिर्फ एक काम करना है, आपने पूरी लिस्ट के सब्जेक्ट्स को रीड करना है, आपको पता लगता जाएगा हाँ यार दिस इज अ यूनियन लिस्ट, दिस इज अ यूनियन लिस्ट। देन यू विल कम अक्रॉस अकॉर्डिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग सम सब्जेक्ट विच विल से अच्छा ये भी यूनियन लिस्ट में है, उसको हाईलाइट करो। ठीक है? आई आस्क यू वेरी सिंपल क्वेश्चन, वेयर इज इंडस्ट्रीज? इंडस्ट्रीज कौन किस किस में मिलता है? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट? स्टेट लिस्ट। वेयर इज माइंस एंड मिनरल्स? कहां मिलता है माइंस एंड मिनरल्स? कहां पे? ओ अगेन स्टेट लिस्ट। ठीक है? लेकिन सेंटर का लॉ बना हुआ है। अब वो सेंटर का लॉ कैसे बना हुआ है? माइंस एंड मिनरल्स रेगुलेशन एक्ट, वो मैं बताऊंगा सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशंस के अंदर। गेटिंग माय पॉइंट? द ओनली थिंग यू हैव टू डू इज, आपको जैसे आप पढ़ोगे ना, हाँ यार सब यूनियन लिस्ट पढ़ रहे हो, हाँ यार ये तो यहीं पे होना चाहिए, ये तो ऑब्वियसली यहीं पे होना चाहिए। देन यू कम एट अ सब्जेक्ट, अच्छा ये भी यहाँ पे, उसको हाईलाइट कर लो, क्योंकि वहीं पे आप गलती करोगे प्री के अंदर, राइट? तो एनी यूनिक सब्जेक्ट यू फील दैट यार ये स्टेट लिस्ट में, अच्छा उसको हाईलाइट कर लो। ठीक है? अच्छा ये कंकरेंट में है, आई थॉट ये तो यूनियन में होना चाहिए था, वो हाईलाइट कर लो। व्हाट द आइडिया? जस्ट दो सब्जेक्ट्स। गेटिंग माय पॉइंट? और जो प्रोमिनेंट करंट अफेयर्स का जो एस्पेक्ट्स होते हैं उस साल के, उसके कॉन्टेक्स्ट में वो ज्यादा पूछते हैं। सिमिलरली दे आस्क्ड अबाउट दिस आल्सो। ठीक है? अब बेटा ये रिजल्ट होता है बिकॉज ऑफ दिस फॉर्मूला यूज्ड, पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्टेड एमएलएज। जो इसका रिजल्ट आया इस मैथमेटिकल ऑपरेशन का, फर्दर डिवाइडेड बाय 1000। If the remainder is 500 or more, this is rounded off, the quotient is rounded off. If it is less than 500, it is ignored. You found out the value of one MLA of one state. Total value of all the votes which will be cast by all the MLAs of state A, 200. 100 into 2 because we assumed it is 100 in some state. Similarly, find out the value of votes of all other MLAs. Achha, ab. What did I say? The Constitution talks about 2 principles. आप पहला प्रिंसिपल समझ आ रहे हैं? यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द स्टेट्स। इसका मतलब क्या हुआ? स्केल क्या होता है? स्केल इज ऑल्सो लाइक अ फॉर्मूला ओनली, लाइक 1:10, 1/10। एक बात होगी, रेशो प्रोपोर्शन फॉर्मूला, स्केल फॉर्मूला ही होता है ना। तो पहले प्रिंसिपल का मतलब ये हुआ, व्हेन यू सी ना यूनिफॉर्मिटी इन द स्केल ऑफ रिप्रेजेंटेशन बिटवीन द स्टेट्स, द फॉर्मूला यूज्ड टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ वोट ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल द स्टेट्स विल रिमेन द सेम। फॉर्मूला वही रहेगा, बट the application of the formula, the value of vote of MLAs may come out to be different, like 208 for UP and 7 for Sikkim. पर फॉर्मूला तो सेम ही लगाया ना हमने। That is what is meant by uniformity in the scale of representation between states. Okay? अब दूसरा का मतलब क्या है? अब आगे The value of vote of MLA of, let us say, state A, which has 100 MLAs. ओके? एक एमएलए की वैल्यू वो 2 है, तो 100 की कितनी होगी? 200। कैन वी वर्क इट आउट फॉर ऑल द 28 स्टेट्स एंड द 3 यूटीज व्हिच हैव अ लेजिस्लेटिव असेंबली? यू कैन वर्क इट आउट। ये तो एक स्टेट के एमएलएस की टोटल वोट्स काउंट की ना हमने, कितनी? 200 बनेंगी ना यहाँ पे, एज्यूमिंग दैट इन दिस स्टेट असेंबली 100 एमएलएस आर देयर, इलेक्टेड एमएलएस, दैट इज राइट। 200 हो गया। कैन वी फाइंड आउट द सेम फिगर फॉर द रिमेनिंग? वी कैन find out the figures for the remaining. Add them. X, Y, Z figure add. Okay. The total votes which will be counted, which will be cast by all the MPs collectively, has to be this figure. So how do you find out the value of vote of MP?
जो सारे एमएलएस के, सारे स्टेट्स के एमएलएस के वोट्स काउंट कर ऐड कर लिए, एक्स वाई जेड डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इलेक्टेड एमपीज गिव्स यू द वोट ऑफ एन एमपी. मतलब the total number of votes which are cast by all the MLAs of the country who represent the entire country has to be equal to the total number of votes cast by all the MPs who also represent the entire country. ठीक है, फेडरल बैलेंस के लिए. So total value of votes of MLAs of all states ये निकला है, divided by the number of elected MPs, that gets you the vote of an MP. Like in the previous election, the value of vote of an MP was 700. उससे पिछले इलेक्शन में it was 708. नीचे क्यों आ गई? क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर was reduced to a UT. असेंबली तो बाद में बनी है ना. जम्मू एंड कश्मीर no longer had an assembly. जम्मू एंड कश्मीर was reduced to a UT after the abrogation of Article 370. तो ये वैल्यू नीचे आ गई आपकी 700. Look at the value of vote, number of votes which are cast by each MP, 700. ठीक है, अब वापस आओ जरा. Parity between the union and the states. Parity हो गई ना, अपने आप तो हो गई parity. Just a moment. Parity कैसे हुई? Total number of all the votes cast by all the MLAs of the country has to be equal to the total number of all the votes cast by all the MPs of the country, all the MPs of the union parliament, elected MPs. Two principles. That's it. This is how you work out the value of votes. Okay. अच्छा बच्चे, now this Article 55 further says that the election has to be on the basis of two things. Proportional representation and single transferable. And I will systematically prove over here, it is neither. लिखा है यहाँ पे, अभी पढ़ो, पूरा आर्टिकल पढ़ा दूंगा आपको मैं. आर्टिकल में थोड़ी सी लीगल लैंग्वेज होती है ना, थोड़ी टिपिकल होती है, तो एक बार ये समझ आ जाए फिर पूरा आर्टिकल पढ़ लेंगे. ठीक है. प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एंड सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इनके बेसिस पे इलेक्शन होगा प्रेसिडेंट का. इन प्रैक्टिस इट इज नीदर. हाउ? यू प्रोबेबली नो, इफ यू डोंट आई टेल यू नाउ. हालांकि डिटेल जिसकी हम बात नहीं करते. राज्यसभा के जो मेंबर्स होते हैं, दे आर अलॉटेड टू वेरियस स्टेट्स. वी डोंट फॉलो द सिस्टम ऑफ इक्वल रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन राज्यसभा. तो हर स्टेट को अलॉट किए जाते हैं. ठीक है. एंड हु इलेक्ट्स द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा फ्रॉम स्टेट्स? अगेन द इलेक्टेड एमएलएज ओनली. हर स्टेट के इलेक्टेड एमएलएज दे इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा. ठीक है. अब जरा ध्यान से सुनना. टेक द केस ऑफ some state A, okay, which has 100 members, 100 members in the legislative assembly, divided as follows. 60 members party A, मतलब इनकी majority, इनकी सरकार होगी. 30 members party B, 10 members party C. ये MLAs की डिस्ट्रीब्यूशन है उस स्टेट में. इस स्टेट को 10 राज्यसभा MPs are allotted. So 10 Rajya Sabha MPs will be elected by these elected MLAs. Do you think it works like this? Election Commission says, okay, Rajya Sabha MP number 1, all parties nominate your candidates. सबने nominate कर दिया अपने अपने candidates. Now vote. तो इनके तो 60 हैं. इन्हीं का MP जीतेगा, इन्हीं का आदमी जीतेगा. Then Election Commission says, now Rajya Sabha MP number 2, nominate your candidates. नाउ वोट. फिर से इनका जीतेगा और तीसरा चौथा 10, सारे 10 के 10 यहां तक आ जाएंगे, इनके पास आ जाएंगे. व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? इज इट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन? बेटा, इवन राज्यसभा इलेक्शन इज हेल्ड ऑन द बेसिस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन. समझो ध्यान से. फॉर द पर्पस ऑफ राज्यसभा इलेक्शन, द होल स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंगल constituency with multiple members. ठीक है. अच्छा एक बात बताओ, हल्की सी कॉम्प्लेक्सिटी समझ आ जाएगी. ठीक है. इलेक्शन में और डिटेल में कराऊंगा, एग्जांपल्स पूरे दे देंगे.
Are you able to understand the difference between a competitive exam like yours and a non-competitive exam? अब आप कहोगे सर नॉन कम्पिटिटिव एग्जाम क्या होता है? होता ही बेटा, बिल्कुल होते हैं। कंपेटिटिव एग्जाम में तो योर परफॉर्मेंस, whether you get selected or not, depends not just on your performance, also depends upon the performance of others. Competitive exam. But non-competitive exam में whether you pass the exam or not depends only on you. तो बेटा गुड एग्जाम सभी ने दिए हुए हैं यार। मैट्रिक क्लास 10th का एग्जाम, क्लास 12th का एग्जाम, आप पास करते हो कि नहीं करते हो, आपके 33% मार्क्स आते नहीं आते हैं, ये बाकी और डिपेंड करता है, ये तो आप पे डिपेंड करता है। यू जस्ट हैव टू गेट दैट मिनिमम 33% मार्क्स टू पास। कोटा, एक कोटा है 33% का, बस इतना आपको लेना है। और ये लेना ना लेना दूसरों पे डिपेंड नहीं करता, ये आप पे डिपेंड करता है। बट इन योर एग्जाम, द सिविल सर्विस एग्जाम यू आर प्रिपेयरिंग फॉर, योर सिलेक्शन डिपेंड्स नॉट जस्ट ऑन योर परफॉर्मेंस बट परफॉर्मेंस ऑफ अदर्स आल्सो। ये कंपेटिटिव एग्जाम है, दिस इज अ नॉन कंपेटिटिव एग्जाम। योर परफॉर्मेंस डिपेंड्स एंटायरली ऑन व्हाट यू डू। ठीक है, पास होते हो आपकी मेहनत है, नहीं पास होते हो तो फिर आपकी बदकिस्मती है आपकी। जो राज्यसभा का इलेक्शन होता है ना, दैट इज ऑल्सो लाइक अ नॉन कंपेटिटिव एग्जाम। टू गेट इलेक्टेड यू जस्ट हैव टू गेट अ मिनिमम कोटा ऑफ वोट्स। और एक बात सुनो, ये एक एक करके इलेक्शन नहीं होता ऐसे। द होल स्टेट इज कंसिडर्ड टू बी वन कॉन्स्टिट्यूएंसी represented by multiple members going to elections in one go. तो क्या होगा? 10 MPs हैं, ठीक है? They know, this party knows कि हम एक ही MP को इलेक्ट कर पाएंगे, हमारे पास 10 ही तो हैं, ठीक है? तो इनको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? इनको कम से कम 1 मिलना चाहिए, इनको कम से कम 3 मिलने चाहिए और इनको 6 मिलने चाहिए। This should be proportional representation, ना? You got the idea? And any of the persons who's contesting MLA, MP or Rajya Sabha MP election in this state just has to get a minimum quota of pass marks. And what is that minimum quota? उसका भी एक फॉर्मूला है। ये देखो क्या है फॉर्मूला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। देखो नंबर ऑफ वोट्स, जितने एमएलए हैं यार सारे वोट्स हैं, 100 एमएलए हैं, 100 डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ पोजीशंस ऑन विच इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड। कितनी पोजीशन राज्यसभा की उस सेट के एग्जांपल में? 10 +1 +1। फर्स्ट वर्कआउट दिस मैथमेटिकल ऑपरेशन, 100 डिवाइडेड बाय 11 +1 रफली वर्क्स आउट टू अराउंड 10। बस आपने एक अपना कैंडिडेट खड़ा किया, सबने उसको वोट कर दिया, हो गया। आपको हर एक को एक अपना अकॉर्डिंग टू योर प्रोपोर्शन ऑफ सीट्स इन द हाउस, इफ यू आर एबल टू गेट इवन दीज मेनी वोट्स एंड अ पार्टी हैविंग जस्ट 10 सीट्स कैन एट लीस्ट इंश्योर दैट वन ऑफ देयर कैंडिडेट्स गेट सिलेक्टेड। बट टू गेट इलेक्टेड he has to get that quota, minimum pass marks. Minimum pass marks का कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ वोट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पोजीशंस ऑन विच इलेक्शन इज हेल्ड। यहां पे क्या है? 10 +1, ये 11 हो जाएगा यहां पे। एंड देन आफ्टर यू वर्क आउट दिस, एड 1 to it, अराउंड 10 आ जाता है। So similarly, when you say that the present election is based on proportional representation, तो उधर भी तो पास मार्क्स चाहिए होंगे ना फिर। अच्छा, फॉर्मूला सेम है ना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का। ऑन हाउ मेनी पोजीशंस इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, कितनी पोजीशंस पे इलेक्शन हो रहा है? एक ही तो पोजीशन है। नंबर ऑफ वोट्स 1 +1 +1। मैं तो बस फॉर्मूले को रिप्लेस ही कर रहा हूं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। वहां एमएलए के इलेक्शन में, राज्यसभा के इलेक्शन में 10 थे। नंबर ऑफ पोजीशन ऑन विच इलेक्शन इज बीइंग हेल्ड, यहां पे तो एक ही पोजीशन है ना, 2। Number of votes divided by 2 is equal to 50% of the votes. +1 means majority of the votes. यहां पे प्रॉब्लम आएगा कि even though the president's election is called an election based on proportional representation and the formula for working out that quota is also the same, but when you put in the figures, you need to get majority of votes.
And in any election, they say, where to get elected, you need to get majority of votes. That election is actually called, that electoral system is actually called majoritarian system. भाई हमने लगाया तो फॉर्मूला प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का ही, लेकिन जब फिगर्स को रिप्लेस किया यहां पे नंबर ऑफ पोजीशन ऑन विच इलेक्शन इज हेल्ड +1 it got more than 50% +1. So to get elected in an election where you have to get majority of the votes, that's not proportional representation, it's called majoritarian system. It's not proportional representation in the true sense, that means majoritarian system. दूसरा, मुझे पता है इसमें बहुत क्वेश्चंस खड़े होंगे आपके दिमाग में, नोट्स में से भी पढ़ लेना एक बार, नेक्स्ट क्लास में पहले मैं क्वेश्चंस लूंगा आपके स्कूल के. Not just your proportional representation, it is held on the basis of single transferable vote. अच्छा बेटा, जब आप लोग वोट करते हो इलेक्शन में, ईवीएम वोट किया होगा, होपफुली करा करो वोट, इट्स अ गुड थिंग. Don't have that ego of some, I would call them stupid people. No leader deserves my vote, so I don't want to go to vote. I will vote in the nota category. Nota category क्या है? It's a waste of your vote यार. Nota category is no, it's not negative vote. कोई फर्क नहीं पड़ता नोटा कैटेगरी से, ठीक है, वो आगे बताऊंगा मैं. इट्स ऑल नॉनसेंस. नोटा कैटेगरी में क्या फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हो अपनी, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई तो फिर भी जीतेगा ही, ठीक है. तो वोट फॉर समवन, ठीक है, दैट्स योर ड्यूटी. कोई भी मेरी वोट डिजर्व नहीं करता. दे आर ऑल रोग्स, दे आर ऑल करप्ट, दिस एंड दैट. देन वोट फॉर समबडी इज नॉट, हु इज नॉट करप्ट. वे कहां से लाऊं? तो मैंने बोला, look in the mirror. You contest election yourself. मैं सिंपल सी बात बताता हूं बेटा लोगों को, हर बच्चों को ये बात बोलता हूं. इफ यू कैनॉट फाइंड इंटेग्रिटी अराउंड यू, इंटेग्रिटी ढूंढनी है ना आपने. मुझे कहीं इंटेग्रिटी नजर नहीं आती, कहीं ऑनेस्टी नजर नहीं आती. फाइंड इट विद इन योर सेल्फ. दैट्स द आइडिया. चलो एनीवे, तो नॉर्मल इलेक्शन होता है आपका, उसमें ईवीएम है आपके सामने, किया होगा, मैं तो हर इलेक्शन में वोट करता हूं. तो वहां जाके फिर यू प्रेस अ बटन, बस दैट्स इट. और डू यू हैव द ऑप्शन टू से माय फर्स्ट प्रेफरेंस इज बीजेपी, माय सेकंड प्रेफरेंस इज कांग्रेस? नहीं करते ना. दिस इज नॉट अलाउड टू यू. बट दैट्स द वे इलेक्शन इज हेल्ड, बोथ फॉर राज्यसभा इलेक्शंस एंड फॉर प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस आल्सो. ठीक है, यू कैन वोट इन, यू आर अलाउड टू वोट इन टर्म्स ऑफ प्रेफरेंसेस. सो लेट अस से A, B, C, D. 4 candidates are contesting presidential elections. Okay? Or for the sake of mathematical simplicity, total number of votes are 100. जो पढ़ने वाले हैं यहाँ पे. अभी बहुत सिंपल कर रहा हूं क्योंकि इसमें बड़ी कॉम्प्लिकेशन है. ठीक है, 100 वोट्स एज्यूम कर लो, 100 वोट पढ़ने हैं. Somebody who has to win must get 51. Majoritarian system. So let us, and every candidate is given a form in which he can say, सारे कैंडिडेट्स के नाम होते हैं, he can indicate first preference, second preference, third preference, fourth preference. हाँ, what is mandatory is filling out the first preference. बाकी नहीं भी करनी मत करो, वो मैंडेटरी नहीं होती. फर्स्ट प्रेफरेंस फिल करनी जरूरत है, लेकिन लोग कर देते हैं फिर भी. ठीक है, मैंडेटरी इज फर्स्ट प्रेफरेंस. ओके, लेट अस से वोटिंग हो गई, सबने अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस भर दी. On the basis of counting of first preferences, let us say, in 51 forms, electoral forms, जिसके अंदर preferences होती हैं, A has gotten first preference. बस जीत गया, मतलब 51 में first preference आ गई. But now assume something different. In 45 forms, first preference is A. In 35 forms, first preference is B. कितने हो गए? 80 हो गया. In 14 forms, first preference is C. In 6 forms, first preference is D. Okay? Assuming सबने अपनी second preference, third preference बढ़ी. अब देखो, nobody has gotten first the quota in the first round. You have to go to the second round now. अब तो आगे चलना पड़ेगा. किसी को मिला ही नहीं कोटा इसका. In fact, VV Giri's election was the only election in which we had to go to the second round. वीवी गिरी का जो 1969 में इलेक्शन हुआ था, राइट. अब इसमें क्या होता है, द पर्सन हु गेट्स द लीस्ट नंबर ऑफ फर्स्ट प्रेफरेंसेस, दिस पर्सन गेट्स एलिमिनेटेड. बट इन दीज 6 forms,
in which he was the first preference. I'm assuming सभी ने second preference भर रखी है. Somebody must have been given second preference. In the 6 forms in which D had first preference, उसमें किसी की second preference तो होगी ना. तो second preference भरी, assume कर रहे हैं हम, हालांकि भरनी जरूरी नहीं होती, assume कर रहे हैं. अब second preference, let us say in all these 6 forms is of A. The second preference, मतलब 6 forms, the second preference votes of this candidate who is eliminated are all in favor of A will be added to A's first preference votes. 651. जीत गया. ठीक है, पर चलो आगे चलते हैं. फिर एक और कॉम्बिनेशन देख लेते हैं. हो सकता है इसमें 3 में A हो, 3 में B हो, तो इसकी जगह फिर 3 आ जाएंगी. तो 3 आएंगी तो ये तो 48 हो गया. 48 इवन देन ही इज नॉट 1. तो फिर ये दिस कैंडिडेट विल गेट एलिमिनेटेड. फिर इसकी सेकंड प्रेफरेंस वोट्स विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड. समबडी वुड एंड अप गेटिंग दैट कोटा. ओके, वोट्स आर गेटिंग ट्रांसफर्ड. जो इसके लिए वोट्स पड़े थे उसके अंदर सेकंड प्रेफरेंस किसकी थी? वोट्स ट्रांसफर हुए ना. व्हाट डिड वी से? सिंगल ट्रांसफरेबल वोट. बेटा एक एमपी कास्ट 700 वोट्स, एमएलए ऑफ यूपी कास्ट 208 वोट्स. तो लेट अस से दिस पर्सन के फॉर्म के अंदर 6 यूपी के एमएलए ने वोट किया. इसको 208 वोट्स पर एमएलए इसको मिले यूपी से फर्स्ट प्रेफरेंस, राइट. तो जब ही इज एलिमिनेटेड, these 208 into 6 votes will be added here. वो तो मैंने सिंपलिसिटी एक्सप्लेन किया ना, 100 लेके हम फिगर. सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब होता है 1 वोट गेट्स ट्रांसफर्ड. अरे 200 and 208 into 6 यार. Oh, it could be 6 MPs forms यार. 700 into 6, 4200 votes. Multiple votes are getting transferred, not single, multiple. Neither proportional representation nor single transferable. और एक और बात बता दूंगा आपको. This is a problem. This can be there. Assume करते हैं. A, B, C, D. 100 votes. 45, 35, वही 14, 6. Okay. Nobody's got the quota in the first round. Now assume one thing. In none of the forms, nobody has filled the second preference. अब क्या करोगे? Not the third preference, not the fourth. किसी ने भरा ही नहीं सर, फर्स्ट प्रेफरेंस भरी. At the end of this, there is only one solution which is available in the President and Vice President Elections Act. If at the end of even the first or second round, if still nobody is able to get the quota, then whoever has the highest number is declared elected. फिर उस फॉर्मूले का मतलब क्या हुआ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का? ये 45 से आगे तब जाएगा ना सेकंड राउंड में कि जब लोग सब ने सेकंड प्रेफरेंस भरी होगी. भरी किसी ने नहीं, फिर ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड. दिस हैपेंस. और जैसे आपका नोटा वोटिंग होती है ना आपके रेगुलर इलेक्शंस में, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में, वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में नोटा वोट नहीं होता. रेगुलर इलेक्शन में तो प्रॉक्सी वोट भी होता है. लाइक वो आर्म फोर्सेस के लिए दे कैन नॉमिनेट हु आर स्टेशन्ड इन सियाचिन एटसेट्रा, तो दे कैन नॉमिनेट समबडी टू कास्ट देयर वोट ऑन देयर बिहाफ. ठीक है, तो वो होती प्रॉक्सी वोट. नो, देयर इज नो सच प्रॉक्सी वोट अलाउड इन प्रेसिडेंशियल इलेक्शन. ठीक है. एंड एमएलएस डोंट हैव टू कम टू दिल्ली टू वोट. अपने अपनी स्टेट्स में वोट डालते हैं बैलेट पेपर्स के ऊपर, और उसके बाद वो बैलेट्स आपके दिल्ली पहुंचते हैं, वहां पे काउंटिंग होती है उसकी. ठीक है. और आपका जो बैलेट पेपर का कलर भी होता है ना, एमपीज का जो बैलेट पेपर होता है, जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट, एमपीज का होता है ग्रीन पेपर बैलेट और एमएलएस का होता है पिंक पेपर बैलेट. पिंक पेपर होता है बैलेट पेपर उनका, एमएलएस का, और एमपीज का होता है ग्रीन. जस्ट टू डिस्टिंग्विश इट, आसानी से पता लग जाता है किसका कौन सा बैलेट, एमपीज का बैलेट पेपर कौन सा, एमएलए का, मिक्स नहीं हो पाएंगे इजीली. राइट, दैट्स द होल आइडिया. ठीक है, जस्ट अ मोमेंट, लेट मी कॉल माय